AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D. This AB is produced to point E and AC is produced to point D. If bisector BO and CO of angle CBE and angle BCD respectively meet at a point O, this BO is a bisector of this angle, it means these two angles are equal. Same way CO is the bisector of this angle, it means these two angles are also equal and they are meeting at a point O. Then prove that एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC. मीन्स हमें ये वाला जो एंगल है ना, इसका रिलेशन ये वाले एंगल से फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? अब आप देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो दो ट्राइंगल है ना, उन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ना, हम ये दो एंगल के बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं ना, सो इजिली वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दिस टू एंगल. सो विल गो थ्रू दैट ओनली. पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो एंगल है अपना लीनियर पेयर है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. सो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. व्हाट वी हैव हियर, y plus angle CBE which is equal to 180 degree. रीजन क्या होगा बच्चों, लीनियर पेयर. नाउ व्हाट वी नीड, हमें बच्चों क्या चाहिए यहाँ पे, हमें तो सिर्फ यही वाला पार्ट चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए. तो इसके लिए क्या करेंगे, वी विल टेक अ हाफ ऑफ दिस. सो लेट्स टेक अ हाफ ऑफ दिस. हाफ ऑफ y प्लस हाफ ऑफ एंगल CBE इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब बच्चों हमें हाफ ऑफ y अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, सो इट इज 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ y. अब यहाँ पे मुझे क्या है, हाफ ऑफ एंगल CBE क्या हो जाएगा, CBO जो हमें चाहिए. सो वी विल राइट इट एज एंगल CBO. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. हमें क्या करना है बच्चों, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. तो हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. तो हम इससे पहले इक्वेशन 1 दे देते हैं. अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यस वी विल टेक Z plus angle BCD is equal to 180 degree. Again they are making linear pair. Now Z, so I am taking its half. Why? Because I want this angle only. Half of angle BCD is equal to 90 degree. Half of Z, अब half of Z मैं यहाँ पे लेती हूँ जैसे हमने प्रीवियस में किया है. हाफ ऑफ एंगल BCD क्या हो रहा है, हाफ ऑफ एंगल BCD इज एंगल BCO, एज दिस इज अ CO इज अ बाइसेक्टर. सो एंगल BCO. अब इसे मैं इक्वेशन 2 दे देती हूँ. अब बच्चों हमें चाहिए क्या, अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं ट्राइंगल ले सकती हूँ, ट्राइंगल BCO. सो आई एम टेकिंग ट्राइंगल BCO. नाउ इन ट्राइंगल BCO, what we have, this angle BCO we have plus angle CBO's value we have plus angle BOC that we need to find out is equal to 180 degree. Now from 1 and 2 what we can say, we have CBO's value, yes. We have BCO's value, yes. We will substitute both the value. First BCO we have 90 degree minus half of Z plus what we have CBO, we have 90 degree again minus half of Y plus angle BOC that we are going to find out which is equal to 180 degree. अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं. So what we have here, yes 90 180 degree here minus half of Z plus Y which is equal to plus angle BOC is equal to 180 degree. अब अपना ये 180 degree कैंसल. So we have angle BOC which is equal to half of Z plus Y. अब बच्चों ये Z plus Y क्या होगा अपना, आप देख सकते हो फिगर में, Z plus Y what we have, Z plus Y is equal to 180 minus X. ट्राइंगल हो रहा है ना, X plus Y plus Z is equal to क्या हो रहा है हमारा 180. So Z plus Y is equal to 180 minus X. तो बस वही ले लेते हैं हम. So angle BOC is equal to half of 180 degree minus X. And what is X? X is our angle BAC. So that we will write angle BOC equal to half of angle 180 minus angle BAC which is our required proof. Okay students, so our next sum is, in figure
the side QR of triangle PQR is produced to point S. This QR is produced to point S. If the bisector of angle PQR and angle PRS meet at a point T. तो ये जो QT है ये this angle का bisector है. So this two angle are equal. Same way ये जो हमारे पास है ना RT ये वाला इस angle का bisector है. So we can say that these two angle are equal. अब हमें find out क्या करना है, हमें prove करना है that angle QTR is equal to half of angle QPR. ये जो एंगल QTR है ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो बच्चों ये वाला जो सम है ना प्रीवियस सम जैसा ही है. यहाँ पे भी हमें दो एंगल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो वहां पे जैसे हमने स्टार्ट किया था कि यस इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहे हैं, ये वाले एंगल्स आ रहे हैं ना. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंगल एंड फ्रॉम दिस एंगल ओनली. ओके, लेकिन वहां पे हमने बच्चों क्या किया था, वहां पे हमने लीनियर पेयर यूज किए थे. यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हो ये ट्राइंगल है और उसके एक्सटीरियर एंगल है. सेम वे ये वाला ट्राइंगल और उसका ये एक्सटीरियर एंगल है. तो हम एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ट्राइंगल PQR फर्स्ट. In triangle PQR we have sum of these two angle will be this angle. So angle PRS exterior angle. बच्चों याद रखना एंगल PRS या PRS है तो ये वाला एंगल है ना ये अपना एक्सटीरियर एंगल है. सो एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR. ओके अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें तो इसके साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है ना. तो मैं यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसे नंबर 1 दे देती हूँ और ये वाला जो एंगल है ना ये एक्सटीरियर एंगल उसे नंबर 2 दे देती हूँ. ओके अब बच्चों मुझे ये वाला पूरा एंगल तो चाहिए नहीं, इसके लिए मुझे हाफ एंगल ही चाहिए. तो मैं हाफ ले लेती हूँ. अगेन हाफ ऑफ एंगल PRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR प्लस हाफ ऑफ एंगल QPR. ओके बच्चों तो ये हाफ ऑफ एंगल PRS है हमारे पास एंगल 2. सो आई एम राइटिंग हियर एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR दैट इज एंगल 1. सो एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ QPR एज इट इज. बच्चों हम क्या करेंगे इसे रिलेशन 1 दे देते हैं क्योंकि ये हम आगे यूज करेंगे. नाउ वी विल मूव फॉर द सेकंड ट्राइंगल QTR. सो नाउ इन ट्राइंगल QTR अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ये वाला एक्सटीरियर एंगल है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. एंगल TRS इज इक्वल टू ये वाले दो सम हो जाएंगे ना. सो दैट इज एंगल TQR प्लस एंगल QTR विच इज इक्वल टू एंगल TRS दैट इज एंगल 2, एंगल TQR दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल QTR दैट वी विल राइट एज इट इज. दैट आई एम गिविंग रिलेशन 2. नाउ यू कैन सी स्टूडेंट रिलेशन 1 and 2 that we got the value accordingly 2. So we can compare both the things. So now from 1 and 2 we can compare both the things. So that is angle 1 plus half of angle QPR is equal to angle 1 plus angle QTR. Angle 1 and angle 1 is getting cancelled. So we have angle QTR is equal to half of angle QPR, which is our required proof. Okay students, our next sum is in figure. We have PS is the bisector of angle QPR. This PS is the bisector of angle QPR. It means these two angles are same. So we'll write in our solution first this thing. So in our solution first what thing is given, that is QPS is equal to angle SPR. This I am giving equation 1. Next thing is given PT is perpendicular to QR. PT is perpendicular to QR. So this we have a perpendicular 90 degree. Show that angle TPS, ये वाला जो एंगल है ना, that we need to show half of angle Q minus angle R. Okay. So बच्चों ये प्रूव करने के लिए ये एंगल TPS is equal to half of angle Q minus R प्रूव करने के लिए पहले क्या करेंगे हम, we will find out the value of angle Q and angle R. बट बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑफ कोर्स हमारे पास ट्राइंगल है तो वही जो कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल वाला वही यूज करेंगे. बट वाइल चूजिंग अ ट्राइंगल व्हाट यू नीड टू टेक केयर, हियर यू विल चूज अ ट्राइंगल विच हैव एटलीस्ट 1 मेजरमेंट. तो हमारे पास ये वाली मेजरमेंट है ना 90 डिग्री. So we will choose accordingly. Okay. So first I am selecting a triangle QPT जहां पे क्या होगा बच्चों, sum of I am writing this 3 angle. Okay. तो बच्चों मैंने ये ट्राइंगल के लिए लिख लिए हैं तीनों एंगल्स. अब यहाँ पे एंगल QPT that I am writing as it is plus angle PQT that I am writing angle Q which we required plus angle PTQ that is we have 90 degree. So हमारे पास एंगल Q की वैल्यू आ गई बच्चों. So एंगल Q is equal to 90 माइनस एंगल QPT.
ओके तो बच्चों हम इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं, बिकॉज एंगल क्यू आया ना, अब हमें एंगल आर फाइंड आउट करना है। अब एंगल आर के लिए क्या करना है बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला कि हमें ट्राइंगल ऐसा सिलेक्ट करना है जहां पे हमारे पास एक मेजरमेंट हो। सो आई एम चूजिंग द सेकंड ट्राइंगल एज अ PTR. सो इन दिस ट्राइंगल व्हाट वी हैव स्टूडेंट्स, आई एम अगेन राइटिंग, आई एम रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर फॉर ट्राइंगल PTR. ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये एंगल TPR ले लिया है और इसके तीनों एंगल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब नाउ एंगल PTR वी हैव 90 डिग्री plus angle PRT that I can write as angle R as we required this one, plus angle TPR I am writing as it is. So again now I have angle R's value also. What I have angle R is equal to 90 minus angle TPR. Okay students, so this I am giving equation 3. अब मेरे पास एंगल Q की वैल्यू भी है और एंगल R की वैल्यू भी है। सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल फाइंड आउट Q माइनस R. ओके स्टूडेंट्स, आई विल फाइंड आउट Q माइनस R. सो आई एम राइटिंग इट. तो बच्चों अब मैंने यहाँ पे एंगल Q माइनस एंगल R फाइंड आउट कर लिया है। आपको पता है ना हमें एंगल Q माइनस R क्यों फाइंड आउट करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है बच्चों, एंगल Q माइनस एंगल R फाइंड आउट कर लिया है। जो हमारे पास क्या है, एंगल TPR माइनस एंगल QPT. फिगर में देखते हैं एंगल TPR क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, एंगल TPR माइनस एंगल QPT. अब बच्चों ये वाला जो है ना स्टेटमेंट, इसे हमें क्या करना है, TPS के फॉर्म में अरेंज करना है। क्या करना है बच्चों, TPS के फॉर्म में अरेंज करना है। तो मैं वही कर रही हूँ, दैट एंगल Q माइनस R. सो व्हाट आई हैव हियर, एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू व्हाट आई हैव, यस आई गॉट एंगल TPR माइनस एंगल QPT. अब क्या करना है बच्चों, हमें तो TPS के फॉर्म में आंसर फाइंड आउट करना है. सो आई एम कन्वर्टिंग TPR इनटू, आई एम राइटिंग TPR इनटू द फॉर्म ऑफ, यू कैन सी TPR इन द फॉर्म ऑफ TPS प्लस SPR. तो हमारे पास TPS आ जाएगा. सेम वे QPT आई एम राइटिंग एज अ QPT, आई एम राइटिंग एज अ QPS माइनस TPS. तो अपने पास QPT भी आ जाएगा. तो बस वही मैं लिख रही हूँ. तो बच्चों मैंने लिख लिया है एंगल TPR इन द फॉर्म ऑफ TPS प्लस SPR एंड QPT in the form of QPS minus TPS. तो अपने पास TPS आ चुके हैं अब यहाँ पे. अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहे हैं ना वो एंगल्स देख लेते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो SPR है बच्चों, तो ये दैट इज एंगल TPS प्लस एंगल SPR माइनस एंगल QPS प्लस एंगल TPS. अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो एंगल SPR और एंगल QPS है ना, दिस बोथ आर इक्वल फ्रॉम 1. Okay, so we can cancel both this. Okay, so what we have, it is equal to angle Q minus angle R we got as a twice of a TPS. You can see this thing, yes, twice of angle TPS. So what we got, yes, angle TPS की वैल्यू आ चुकी है, that is equal to half of angle Q minus angle R, which is our required proof. Students, अब हमारा नेक्स्ट सम है, it is PQ is perpendicular to PS. It is given that PQ is perpendicular on PS. It means students यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री वैल्यू आ जाएगी. ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, PQ is parallel to SR. This PQ is parallel to SR. This thing is also given. Angle SQR is given 28 degree. Angle SQR is given students 28 degree and angle QRT is also given. That is equal to 65 degree. Students हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू. इट मीन सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो क्वेश्चन और फिगर से ही पता चल जाएगा. यहाँ पे ऑब्वियसली परपेंडिकुलर लाइन दिया गया है, 90 डिग्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया. पैरेलल लाइन है, इट मींस अगेन पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट यूज होगा स्टूडेंट्स. तो x है, ये हमें x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मींस ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स. देखिए PQ इज पैरेलल टू SR, है ना, and QR is transversal students. So we can say that x plus 28 degree is equal to 65 degree. Reason क्या होगा students, alternate interior angles, है ना. So पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं alternate interior angle यूज करके. So solution में हम देख लेते हैं students. So what we have, x plus 28 degree is equal to 65 degree. Reason क्या होगा students, alternate interior angles. तो x की वैल्यू इजीली आ जाएगी. So x की वैल्यू क्या आ जाएगी students, 65 degree minus 28 degree. Therefore we have x is equal to 37 degree, है ना.
ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो स्टूडेंट्स देखो y कहां पे फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल PSQ में स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी एक एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री और दूसरा वैल्यू है x जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। इट मींस हम वैल्यू y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली, तो वही सिलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम। नाउ इन ट्राइंगल PQS what we have, yes, angle P which is our 90 degree plus x plus y which is equal to 180 degree. So 90 degree plus x हमारा क्या है स्टूडेंट्स 37 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब हम इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। सो वी हैव y इज इक्वल टू 53 डिग्री जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमने ऐसे एंगल x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया और एंगल y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, वही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो स्टूडेंट्स अब इस समय क्या करना है देख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, A, B, C are the three angles of a triangle. If A minus B is equal to 15 degree and B minus C is equal to 30 degree, find angle A, angle B and angle C. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो, है ना, ट्राइंगल में। तो यहाँ पे भी वही करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल A प्लस B प्लस C विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स हमें A, B और C की वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड हमें एक कंडीशन दी गई है, देखिए A माइनस बी इक्वल टू 15 डिग्री और भी एक कंडीशन दी गई है स्टूडेंट्स, B माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, B माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमें कंडीशन दी गई है, A, B और C की सेपरेटली वैल्यू नहीं दी गई है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये तीनों तो अननोन ही है हमारे लिए, वेरिएबल्स है ना। तो ये जो इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स है, अगर हम इसे एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे तो तब तो बहुत ही इजीली वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ही वेरिएबल में ये इक्वेशन चाहिए, लेकिन कौन से वेरिएबल में, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है ना हम उसे यूज करेंगे। हमें क्या दिया गया है, A माइनस बी इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड B माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन में, दोनों कंडीशन में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, B। इट मीन्स इन दोनों इक्वेशन को हम B के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, A को भी B के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और C को भी B के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे A इज इक्वल टू 15 डिग्री प्लस B, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, C इज इक्वल टू B माइनस 30 डिग्री। इट मीन स्टूडेंट्स अब हमारे पास A की वैल्यू भी है और C की भी वैल्यू है। अब A और C की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। ओके, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A विच इज इक्वल टू 15 प्लस B एज इट इज प्लस C की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, B माइनस 30 डिग्री। सो B माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 180। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखा यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, सब में हमारे पास एक ही वेरिएबल है, B और B। अब तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी है, वही तो हमारा मेन मोटिव था, है ना स्टूडेंट्स। चलो देख लेते हैं। सो B प्लस B विच इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 180 डिग्री, 15 माइनस 30 विच इज माइनस 15, सो इट्स प्लस 15 डिग्री। Therefore, B is equal to 180 plus 15, 195 divided by 3 which is equal to 65 डिग्री। तो स्टूडेंट्स B की वैल्यू आ चुकी है 65 डिग्री। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हमें A और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो तो बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ हमें B की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है ना। तो चलो वही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी हैव A इज इक्वल टू 15 डिग्री प्लस B विच इज 65। Therefore, A इज इक्वल टू 80 डिग्री। सिमिलरली C की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू B इज 65 डिग्री माइनस 30 डिग्री। Therefore, C इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पे हमने A और C की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, जो हमारे बाकी के 2 रिक्वायरमेंट्स थे। यही तीनों स्टूडेंट्स हमारे आंसर होंगे, वेयर A इज इक्वल टू 80 डिग्री, B विच इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड C इज इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, ये हमारे आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब इस सब में क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल ABC AD बाइसेप्ट्स एंगल A एंड एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। प्रूव दैट एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल ADC। तो स्टूडेंट्स ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स हम पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC
ओके स्टूडेंट्स, और क्या दिया गया है, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को एडी बाइसेक्ट्स कर रही है, तो ये भी हम दे लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एडी ड्रॉ की है जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी ए डी एंड एंगल डी ए सी, जिसे हम एंगल 1 और एंगल 2 से इंडिकेट कर देते हैं। और स्टूडेंट्स आगे क्या दिया गया है, हमें कंडीशन भी दी गई है, दिस एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। कौन सी कंडीशन दी गई है स्टूडेंट्स, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। ओके स्टूडेंट्स, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, दिस एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। अब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी, दिस एंगल ए डी बी जिसे हम एंगल 3 से इंडिकेट कर देते हैं, विच इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी जिसे हम एंगल 4 से इंडिकेट कर देते हैं। सो व्हाट वी नीड टू प्रूव, we need to prove that angle ADB is greater than angle ADC, angle ADC जो कि अल्टीमेटली क्या है, एंगल 3 और एंगल 4। so it means we need to prove that angle 3 is greater than angle 4। अब स्टूडेंट्स ये प्रूव करने के लिए हमें जो गिवन है सबसे पहले हम उसे यूज करेंगे। हमें गिवन क्या है, एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी तो है ही, और क्या मिला स्टूडेंट्स, हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिला बिकॉज ऑफ AD इज बाइसेक्टर, है ना। सो वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन एंगल 3 एंड एंगल 4। अब स्टूडेंट्स ये एंगल 3 एंड एंगल 4 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंगल 3 एग्जिस्ट कर रहा है इन ट्राइंगल ADB एंड एंगल 4 एग्जिस्ट कर रहा है इन ट्राइंगल ADC। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब अगर एंगल 3 की बात करें तो एंगल 3 स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ABD में है, तो एंगल 3 का हम एंगल B, ये जो गिवन एंगल है वो, और एंगल 1 की भी तो रिलेशन दी गई है, तो इन दो गिवन एंगल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली एंगल 4 के लिए भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो गिवन एंगल्स हैं उनके फॉर्म में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके जो गिवन कंडीशन है उसके फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। अब स्टूडेंट्स इसी कंडीशन में अगर मैं इक्वल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो कंडीशन, ये जो सेटिस कंडीशन है वो तो एज इट इज ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एंगल C प्लस एंगल 2 कर रही हूँ, बिकॉज एंगल C और एंगल 2 इन ट्राइंगल ADC है। ओके सो एंगल C प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल B प्लस एंगल 1। अब स्टूडेंट्स एंगल 2 और एंगल 1 तो इक्वल क्वांटिटी ही है ना। तो हम इक्वल क्वांटिटी को किसी कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करें तो एज इट इज ही रहेगा ये। ओके अब एंगल C प्लस एंगल 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, एंगल C प्लस एंगल 2 इन ट्राइंगल ADC, हमारे पास अगर दो एंगल है और थर्ड एंगल के फॉर्म में हमें इसे लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, एंगल C प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री माइनस एंगल 4 होगा, है ना स्टूडेंट्स। वही तो हम लिख सकते हैं। अगर मेरे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल XYZ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री है तो वहां पे हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस जेड होगा ना। तो स्टूडेंट्स बस यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन एंगल B प्लस एंगल 1। सो एंगल B प्लस एंगल 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 माइनस एंगल 3, वो भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 3। तो स्टूडेंट्स क्लियरली 180 और 180 तो कैंसिल ही हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या मिला, माइनस एंगल 4 इज ग्रेटर देन माइनस एंगल 3, है ना। अब स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, बस प्लेस चेंज कर लेते हैं। तो माइनस एंगल 3 विल कम हियर, सो इट इज एंगल 3 ग्रेटर देन माइनस एंगल 4 विल गो देयर, सो एंगल 4। एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है स्टूडेंट्स, देखा आपने। इट मींस अल्टीमेटली हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस इज एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल ADC। ओके हेंस दिस इज आवर प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, बस ये जो एंगल 3 और एंगल 4 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना था, इसके लिए हमें जो गिवन एंगल्स थे उससे ही यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट प्रूफ सम देख लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पे, दैट द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स, है ना। सो ट्राइंगल ABC दिया गया है, तो स्टूडेंट्स हम पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, ये जो साइड BC है ना, दिस साइड इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे A ले लेते हैं और ये जो BC यहाँ पे जो साइड फॉर्म होगी ना उसे हम प्रोड्यूस कर देते हैं, मीन्स एक्सटेंड कर देते हैं दोनों साइड से। सो दिस इज अवर साइड BC, दोनों साइड से मैंने एक्सटेंड कर दी है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज दैट, वी नीड टू प्रूव, व्हाट वी नीड टू शो दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे फॉर्म होंगे, ऑब्वियसली बेस एंगल पे ही, क्योंकि यहाँ से ही साइड एक्सटेंड हुई है। सो दिस एंगल यहाँ पे मैं एंगल 1 इंडिकेट कर देती हूँ,
और ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसे हम एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं. सो क्या दिया गया है, दिस एंगल सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन एंगल ए बाय 2 राइट एंगल्स. ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स. इट मींस एंगल 1 एंड एंगल 2, ये जो दोनों एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए के साथ. तो एग्जैक्ट ये जो कंडीशन है ना, इसे हम इक्वेशन फॉर्म में अगर लिखे, सो व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू कितना है, सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन एंगल ए. एंगल ए से ग्रेटर है. कितना ग्रेटर है, 2 राइट एंगल स्टूडेंट्स, मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री. 2 राइट एंगल्स ग्रेटर है ना, तो ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स. सो हाउ वी विल प्रूव इट स्टूडेंट्स, क्लियरली एक्सटीरियर एंगल दिया गया है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल से रिलेटेड हमारे पास कितनी कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन है स्टूडेंट्स, और वही एप्लीकेबल होगी. तो चलो वही देख लेते हैं स्टूडेंट्स. हम यहाँ पे अगर एंगल 1 मुझे लिखना है स्टूडेंट्स, एंगल 1 कैन रिटर्न एज एंगल ए प्लस यहाँ पे मैं एंगल 3 कंसिडर कर देती हूँ. इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल 3 होगा ना स्टूडेंट्स. सो एंगल ए प्लस एंगल 3, क्योंकि हमें पता ही है स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, जो हमने लिख लिया है. सेम वे एंगल 2 के लिए अगर मुझे यही कंडीशन अप्लाई करनी है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल 2 कैन रिटर्न एज, यहाँ पे हम एंगल 4 अगर कंसीडर कर देते हैं, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंगल ए प्लस एंगल 4, है ना स्टूडेंट्स. अब ये जो यहाँ पे हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई की स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स एक्सटीरियर एंगल. अब यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स. हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड कर लेते हैं. सो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, राइट हैंड साइड एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 4. स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए, जो हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट थी, है ना. सो एंगल ए एज इट इज प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 4. क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होगा ना. इट मींस ये तीनों के प्लेस पे आपके पास आ जाएगी 180 डिग्री वैल्यू, है ना. अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री, जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, वही तो हमें प्रूव करना था. और एंगल 1 क्या है उसमें, ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल. एंगल 2 क्या है, एक्सटीरियर एंगल. सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल ए ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ राइट एंगल. यही हमें प्रूव करना था. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ये प्रूफ सम है. तो यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC. तो पहले हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स. तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. इट इज ट्राइंगल ABC. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल ABC BD इज परपेंडिकुलर टू AC. पॉइंट B से हम AC पे एक BD परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, BD विच इज परपेंडिकुलर ऑन AC. अब नेक्स्ट क्या है, CE इज परपेंडिकुलर टू AB. दिस CE पॉइंट C से AB पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स CE परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पे. ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया है, BD एंड CE इंटरसेक्ट एट O. दिस BD एंड CE इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट O. Then what we need to prove? We need to prove that angle BOC, इसे हम एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं स्टूडेंट्स. दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, मीन्स एंगल 1 का एंगल ए के साथ हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, है ना. अब स्टूडेंट्स एंगल 1 और एंगल ए के बीच में कैसे रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन दी गई है. इंटरसेक्टिंग लाइन दी गई है, इट मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि डायरेक्टली एंगल 1 एंड एंगल ए रिलेट नहीं कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है, एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो डायरेक्टली एंगल ए से भी रिलेट करे और एंगल 1 से भी रिलेट करे. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल EOD. दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो हम इसे एंगल 2 कंसिडर कर देते हैं. सो व्हाट वी हैव, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना स्टूडेंट्स. अब क्या है, अब स्टूडेंट्स हमें इट मींस एंगल 2 और एंगल ए के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो एंगल 2 और एंगल ए कैसे रिलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप फिगर को क्लियरली एकदम ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है AEOD. इट मींस यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स. ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन क्वाड्रिलेटरल AEOD
AEOD. What we have? All these angles we have. Angle A we have. Angle AEO को हम angle 3 consider कर देते हैं and angle ODA को हम एंगल 4 कंसिडर कर देते हैं. ओके तो यहाँ पे क्या होगा? सम ऑफ ऑल दिस 4 एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो चलो उसे ऐड कर लेते हैं. सो वी हैव एंगल A प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इट मीन्स हमारे पास एंगल A और एंगल 2 रिलेशन में आ चुके हैं. बस अब हम इसे सॉल्व करना है तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी. सो व्हाट वी हैव, एंगल A वो हमारी रिक्वायरमेंट है. सो एंगल A एज इट इज. एंगल 3 स्टूडेंट्स क्या होगा? एंगल 3 इज 90 डिग्री. तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल 3 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? जो हमें एंगल 2 दैट इज इक्वल टू एंगल 1. सो वी विल राइट इट एज एंगल 1. और एंगल 4 क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री. हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है ना. सो एंगल 4 वी विल राइट एज अ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना. अब क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. तो हमें कंडीशन किस फॉर्म में चाहिए? एंगल A के फॉर्म में चाहिए. तो हम एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A. ओके तो ये हमारा स्टूडेंट्स जो प्रूफ था ना वो आ चुका है. देखा आपने? अब जहाँ पे एंगल 1 क्या है? एंगल BOC. सो वी विल राइट इट एज एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A जो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट प्रूफ हम देख लेते हैं. यहाँ पे क्या दिया गया है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ बेस एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कैन नॉट एनक्लोज अ राइट एंगल इन एनी केस. स्टूडेंट्स अब ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा तो वैसे हमें डायरेक्टली आइडिया नहीं आ रहा है. तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है ना उसे फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो पहले हमें क्या चाहिए? ऑब्वियसली एक ट्राइंगल तो चाहिए बेस एंगल्स के लिए. तो हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ABC. नो स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABC बाइसेक्टर्स लेने हैं. लेकिन किसके? बाइसेक्टर्स ऑफ बेस एंगल्स. ये जो बेस एंगल्स है ना, एंगल B एंड एंगल C, ये दोनों बेस एंगल्स हुए. ओके इनके बाइसेक्टर्स हमें ड्रॉ करने हैं. तो चलो हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. BO मैंने ड्रॉ किया है. सेम वे CO इज ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल C. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिया. इट मीन्स एंगल B 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया. सेम वे एंगल C ऑल्सो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है. अब क्या है? यहाँ पे दिया गया है कि दिस बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट एनक्लोज अ राइट एंगल. मीन्स ये जो बाइसेक्टर्स जहाँ पे मिल रहे हैं ना, वहाँ पे पॉइंट O पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल राइट एंगल नहीं ही होगा. ये हमें प्रूव करना है. तो इसे एंगल 1 कंसिडर कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स व्हाट वी नीड टू प्रूव that angle 1 is not equal to 90 डिग्री. ओके अब हमारे पास तो मेजरमेंट है ही नहीं स्टूडेंट्स. और ट्राइंगल में मेजरमेंट एक ही कंडीशन में आती है, वो है सम ऑफ ऑल दिस 3 एंगल्स. तो हम क्या करते हैं? ये जो ट्राइंगल OBC है ना, ट्राइंगल OBC में से एंगल 1 हमने इंडिकेट कर दिया है यहाँ पे. अब दूसरे 2 एंगल्स हैं उसे भी हम इंडिकेट कर देते हैं. एंगल OBC जिसे हम एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं एंड एंगल OCB जिसे हम एंगल 3 इंडिकेट कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल दिस 3 एंगल इज 180 डिग्री. तो पहले वो कंडीशन लिख लेते हैं. सो इन ट्राइंगल OBC व्हाट वी हैव? यस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं. अब स्टूडेंट्स हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है? एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट मींस अगर एंगल 1 के लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी है तो हमें एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू चाहिए ना, है ना. अब एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू कहां से आएगी स्टूडेंट्स? एंगल 2 एंड एंगल 3 आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, बेस एंगल्स में ही है. इट मींस एंगल 2 इज अ हाफ ऑफ एंगल B एंड एंगल 3 इज अ हाफ ऑफ एंगल C. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं और ट्राइंगल ABC के फॉर्म में हम एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इन ट्राइंगल ABC व्हाट वी हैव? यस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब स्टूडेंट्स हमें तो हाफ ऑफ पार्ट ही चाहिए बिकॉज वी नो दैट एंगल 2 इज अ हाफ ऑफ एंगल B एंड एंगल 3 इज अ हाफ ऑफ एंगल C. तो हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर देते हैं. सो व्हाट वी हैव? यस हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके हाफ ऑफ 180 डिग्री दैट इज 90 डिग्री. अब हाफ ऑफ एंगल A हम एज इट इज रहने देते हैं बिकॉज उससे रिलेटेड हमारे पास कोई बाइसेक्टर नहीं है. हाफ ऑफ एंगल B वी नो दैट इज इक्वल टू एंगल 2 because BO is our angle bisector. So half of angle B is angle 2 plus half of angle C is angle 3 which is equal to 90 degree. तो स्टूडेंट्स हमें एंगल 2 और एंगल 3 ही चाहिए था ना.
देखो स्टूडेंट्स, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 से रिलेटेड हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, दैट इज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना एंगल 2 प्लस एंगल 3 की, वो हम इक्वेशन 1 में ऐड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फ्रॉम 1 व्हाट वी हैव, एंगल 1 वी विल राइट एज इट इज, व्हाई, बिकॉज वी रिक्वायर्ड इट, उसी से रिलेटेड कंडीशन चाहिए ना स्टूडेंट्स हमें। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए स्टूडेंट्स विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, बिकॉज एंगल ए किसी भी कंडीशन में 0 तो होने वाला है ही नहीं। इट मीन्स एंगल 1 की वैल्यू आई 90 से कुछ ज्यादा, 90 से कुछ वैल्यू ज्यादा है, इट मीन्स ऑब्वियसली नॉट 90 डिग्री, सो विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, वही तो हमें प्रूव करना था, है ना। सो वी कैन से दैट एंगल BOC इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट बाइसेक्टर्स, दिस बाइसेक्टर्स कैन नॉट एनक्लोज अ राइट एंगल इन एनी केस, यही हमारा प्रूफ है। तो स्टूडेंट्स अब इस समय क्या करना है देख लेते हैं, क्या दिया गया है हमें, इन फिगर OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। तो स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी 4 रेज दिए गए हैं इस फिगर में। आगे क्या दिया गया है, प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। स्टूडेंट्स ये जो एंगल्स है ना इनका सम 360 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स याद है आपको, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि जब भी आपको मेजरमेंट चाहिए, प्रूव करना है मेजरमेंट, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास 3 चॉइसेस है। फर्स्ट चॉइस है कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है तो आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा, वो तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, है ना स्टूडेंट्स। और अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे आपको लीनियर पेयर मिल सकते हैं, या तो फिर स्ट्रेट एंगल भी फॉर्म हो रहे हैं तो आपके पास 180 डिग्री मेजरमेंट आ जाएगा। और थर्ड कंडीशन कौन सी है स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन है कंप्लीट एंगल, इट मींस 360 डिग्री। लेकिन वो ऑप्शन तो हम ले ही नहीं सकते स्टूडेंट्स, बिकॉज वो तो हमें प्रूव करना है ना। इट मींस हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बची है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए यहाँ पे हमारे पास रेज है ना, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो रे OQ है उसका अपोजिट रे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रे OT ड्रॉ कर रही हूँ जो कि अपोजिट है OQ का। तो स्टूडेंट्स ये TOQ एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब स्टूडेंट्स TOQ पे ये जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं, इन एंगल्स को अगर हम नंबर से इंडिकेट करें तो स्टूडेंट्स ये जो POQ है इसे मैं एंगल 1 से इंडिकेट कर देती हूँ, एंगल QOR को एंगल 2 से इंडिकेट कर देते हैं, एंगल SOR को एंगल 3 से इंडिकेट कर देते हैं, एंगल TOS को एंगल 4 से, एंड एंगल POT को एंगल 5 से इंडिकेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें करना क्या है, बस स्टूडेंट्स ये जो लाइंस पे एंगल फॉर्म हुआ है उनका सम तो हम ले सकते हैं ना 180 डिग्री। तो सिंपल स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है, हमें सारे एंगल का सम 360 डिग्री प्रूव करना है। तो ये जो लाइन TOQ पे एंगल्स फॉर्म हुए हैं, जो अप साइड है और जो डाउन साइड है, इनको सेपरेटली सम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, फिर लास्ट में सबको ऐड कर लेंगे। ओके, तो क्लियरली स्टूडेंट्स हमें पहले क्या दिख रहा है यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 5 विच इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। स्टूडेंट्स इससे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसका रीजन क्या होगा 180 डिग्री का, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर ये जो TOQ क्या है इसके नीचे के साइड हम देखें तो वहां पे एंगल 2, 3 एंड 4 तीनों एंगल्स मिलके क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स 180 डिग्री बनाएंगे ना, बिकॉज वो भी तो स्ट्रेट लाइन पे है। सो दैट ऑल्सो वी कैन राइट एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। स्टूडेंट्स इसका रीजन क्या होगा, अब हमारे पास पैर में एंगल नहीं है, ओके, ये स्ट्रेट लाइन पे ही एंगल्स फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, बस स्टूडेंट्स हमें तो सारे एंगल का सम ही चाहिए था, प्रूफ में वही चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे सारे एंगल्स को साथ में ले लेते हैं। इट मींस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। ओके, वही कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास वही बचा है स्टूडेंट्स, सो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट्स बस हमें सिंप्लीफाई करना है। एंगल 1 क्या है हमारा, एंगल POQ, वही तो लिया है स्टूडेंट्स हमने। एंगल 1 हमारे पास है एंगल POQ। अब स्टूडेंट्स एंगल 5, अब एंगल 5 स्टूडेंट्स एंगल 5 और एंगल 4 मिलके हमारा वन ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल है, वो फॉर्म कर रहा है। वो क्या है एंगल POS, हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट थी ना। सो एंगल 5
प्लस एंगल 4, इन दोनों के प्लेस पे मैं क्या लिख रही हूँ, एंगल POS, जो हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट थी। सो प्लस एंगल POS प्लस एंगल 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑलरेडी है QOR, सो एंगल QOR प्लस एंगल 3 दैट इज एंगल SOR विच इज इक्वल टू 180 प्लस 180 दैट इज 360 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स। तो देखो हमने जो प्रूव करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है ना। बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें एक ही लॉजिक यूज करना था कि हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट क्या की, रे OT कंस्ट्रक्ट की जो OQ से अपोजिट थी। तो स्टूडेंट्स किसी भी रे का अपोजिट रे ड्रॉ करके आप एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे OT लिया, अब वैसे ही OT को यहाँ पे भी ले सकते हो। ओके, बस हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए बिकॉज वहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुए उनका मेजरमेंट हम 180 डिग्री ले सकते हैं। ओके, हेंस दिस इज प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट सम है, इट इज PQ इज पैरेलल टू AB। हियर इट इज गिवन दैट दिस PQ इज पैरेलल टू AB। और नेक्स्ट क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, PR इज पैरेलल टू BC, है ना, ये भी हमें कंडीशन दी गई है। नेक्स्ट दिया गया है एंगल QPR इज 102 डिग्री, दिस एंगल QPR इज गिवन 102 डिग्री, जिसे हम एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स वही हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा सोल्यूशन का। सो व्हाट वी विल राइट देयर, एंगल 1 इज इक्वल टू 102 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ABC, एंगल ABC जिसे हम एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं। सो वो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ABC विच इज इक्वल टू एंगल 2, जो हमारा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट तो दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस किसी ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड तो है नहीं। अगर कनेक्टेड होती तो हम इजीली हम जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है या तो फिर जो भी एंगल से रिलेटेड हमारे पास कंडीशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल कर पाते, लेकिन नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो पैरेलल लाइंस है ना उसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये PQ है इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। सेम वे ये जो BC है उसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये पॉइंट O पे मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, सेम वे अगर मैं BA को भी एक्सटेंड करती हूं, सो विच विल मीट PR एट पॉइंट S। ओके, तो अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, देख रहे हो ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास गिवन वैल्यू ओनली एंगल 1 है ना। अब एंगल 1 और एंगल 2 कैसे रिलेट करेंगे, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं PR इज पैरेलल टू OC लेती हूँ, OC also parallel to PR as BC is the part, BC is the part of OC, है ना। तो what we can say, PR is parallel to OC and PO is a transversal। PO अगर ट्रांसवर्सल है so एंगल 1 एंड एंगल O कनेक्ट हो रहा है as they both are co-interior एंगल, है ना स्टूडेंट्स। इट मींस एंगल 1 और एंगल O के बीच में रिलेशन आ रहा है। अगर मैं दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल लाइन लेती हूं स्टूडेंट्स, दैट इज PO इज पैरेलल टू SB एंड OC इज अ ट्रांसवर्सल, तब क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल 2 और एंगल A के बीच में रिलेशन हमें मिल रहा है एज एंगल O एंड एंगल 2 दे बोथ आर मेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या देखा स्टूडेंट्स, आपने एंगल 1 और एंगल 2 तो कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन किसी एक कॉमन एंगल के साथ, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन एंगल है उसे एंगल 3 इंडिकेट कर देते हैं और एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो एंगल 3 की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो इजीली हम एंगल 2 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले हम एंगल 1 प्लस एंगल 3 ले लेते हैं। सो क्लियरली वी हैव हियर PR इज पैरेलल टू OC एंड what we have, yes, PO is a transversal, PO is transversal, so what we have, yes, angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. What is the reason students, yes of course, co-interior angles. okay, अब यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास स्टूडेंट्स, दैट इज 102 डिग्री। सो 102 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, एंगल 3 इज इक्वल टू 78 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट 78 डिग्री। अब हमें एंगल 2 की वैल्यू एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट है। सो एंगल 3 इज ओनली इक्वल टू एंगल 2। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हमने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स क्या, दैट वी हैव PO इज पैरेलल टू SB। रीजन क्या लिख सकते हो, PO इज पैरेलल टू SB एंड OC इज अ ट्रांसवर्सल, है ना। कंडीशन अलग अलग है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइन, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन अलग है और यहाँ पे भी हमारे पास पेयर ऑफ पैरेलल लाइन अलग है, जो आपको सिलेक्ट करनी है फिगर को देख के। सो व्हाट वी हैव, यस, सो हियर एंगल 3 एंड एंगल 2 दे बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। सो व्हाट वी हैव, यस वी हैव वैल्यू ऑफ एंगल 2 विच इज इक्वल टू 78 डिग्री, और 78 डिग्री है, इट मीन्स हमारा एंगल 2 क्या है स्टूडेंट्स, एंगल ABC। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 78 डिग्री, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी विथ रीजन।
तो स्टूडेंट्स अब इस समय क्या करना है ये देख लेते हैं। क्या दिया गया है, इन फिगर शो दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो स्टूडेंट्स हमें ये फिगर दी गई है, इस फिगर में हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे मेजरमेंट्स दिए गए हैं, एंगल्स दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल्स को इंडिकेट कर देते हैं नंबर से। तो ये जो एंगल बी ए सी है इसे मैं एंगल 1 से इंडिकेट कर देती हूँ। एंगल ए सी ई है इसे हम एंगल 2 से इंडिकेट कर देते हैं। एंगल ई सी डी है इसे हम एंगल 3 से इंडिकेट कर देते हैं। और एंगल एफ ई सी है इसे हम एंगल 4 से इंडिकेट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमें प्रूव करना है वो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अगर स्टूडेंट्स मुझे दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो एटलीस्ट वो ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड होनी चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे ए बी और ई एफ ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स फिगर को ध्यान से देखिए, ए बी और सी डी तो कनेक्टेड है ट्रांसवर्सल से, है ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम ये प्रूव कर दे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, वैसे ही सी डी और ई एफ भी तो एक ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड है। इट मीन्स अगर हम प्रूव कर देते हैं सी डी इज पैरेलल टू ई एफ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सो अल्टीमेटली ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, है ना स्टूडेंट्स। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले फॉर ए बी एंड सी डी हम क्या करेंगे, एंगल्स देखते हैं। अब यहाँ पे हमें ये एंगल दिया गया है एंगल 1 विच इज इक्वल टू 57 डिग्री। अब स्टूडेंट्स अगर एंगल 1 ये है तो एंगल 2 और 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल 2 + 3, ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 + 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, है ना। तो हम एंगल 2 + 3 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एंगल 2 + एंगल 3 विच इज इक्वल टू 22 डिग्री + 35 डिग्री विच इज इक्वल टू 57 डिग्री। इट मीन्स स्टूडेंट्स हमने क्या दिखाया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 + 3। तो ये एंगल्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हमें इक्वल मिल गए। Means angle 1 is equal to angle 2 + 3. So we can say that AB is parallel to CD, है ना स्टूडेंट्स। So AB is parallel to CD, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। और पैरेलल क्यों है स्टूडेंट्स, रीजन क्या आएगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आगे देखें तो हमारे पास CD और EF के बीच में जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ट्रांसवर्सल EC की वजह से, वो देखें तो एंगल 4 और एंगल 3, ये दो एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल 4 और एंगल 3 स्टूडेंट्स को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो इन दोनों का अगर हम सम फाइंड आउट करें मीन्स एंगल 4 + एंगल 3, एंगल 4 कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 145 डिग्री और एंगल 3 कितना है 35 डिग्री। दोनों का सम कितना आ गया स्टूडेंट्स 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम आ गया 180 डिग्री। इट मीन्स सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, है ना स्टूडेंट। हम वो ले लेते हैं। तो सी डी इज पैरेलल टू ई एफ बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं स्टूडेंट्स, ओके। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हमें क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड दिस सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, जैसे हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। सो अल्टीमेटली ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा प्रूफ था ना स्टूडेंट्स। सो हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, दिस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री। दिस एंगल एम एक्स क्यू इज गिवन 135 डिग्री स्टूडेंट्स, जिसे हम एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज गिवन एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल एम वाई आर विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, जिसे हम एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है हमें, एंगल एक्स एम वाई हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स ये जो रिक्वायर्ड एंगल है ना हमारा, ये रिक्वायर्ड एंगल किसी भी पैरेलल लाइन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो 2 पैरेलल लाइंस दिए भी गए हैं ना, वो किसी एक कॉमन ट्रांसवर्सल से कनेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या मिसिंग है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ पे एक पैरेलल लाइन मिसिंग है ना स्टूडेंट्स। अब ये जो पैरेलल लाइन कहीं पे कहाँ पे होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट एम है ना, वहां से अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जो कि पी क्यू और आर एस से पैरेलल है, ओके, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रांसवर्सल भी आ जाएंगे, ट्रांसवर्सल एक्स एम एंड एम वाई, और हम इजीली एंगल एक्स एम वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि आपके पास ये जो सेट ऑफ सम्स है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट आएगा, वहां पे आपको सोचना है कि आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है कि पैरेलल लाइन एक्सटेंड करनी है। यहाँ पे हमें पैरेलल लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर हम पैरेलल लाइन एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि पी क्यू और आर एस को एक्सटेंड करते हैं, तो हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट एम से ही पास करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम पॉइंट एम से ही लाइन को पास करेंगे ना, तो हमारे पास एक्स एम एंड एम वाई ट्रांसवर्सल आ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं, हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइन ई एफ।
which is parallel to PQ also and RS also. So now we have a transversal XM, है ना स्टूडेंट्स. अब हमारे पास ये XM ट्रांसवर्सल है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की ना, सो ये एंगल XMY दो पार्ट में डिवाइड हुआ. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एंगल XMF को एंगल 3 इंडिकेट कर देते हैं एंड एंगल FMY को हम एंगल 4 इंडिकेट कर देते हैं. इट मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल XMY जो हमारा क्वेश्चन है, एंड XMY इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 विच इज अवर क्वेश्चन. इट मीन्स इनडायरेक्टली हमें स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल 3 की वैल्यू और एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन भी है और ट्रांसवर्सल भी है. इट मीन्स हम इजीली एंगल 3 की वैल्यू और 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दे बोथ आर को इंटीरियर एंगल. इट मीन्स एंगल 3 की वैल्यू इजीली आ जाएगी. सेम वे एंगल 4 और एंगल 2 क्या हो रहे हैं, दोनों इक्वल होंगे. क्यों, बिकॉज दे बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. इट मींस एंगल 4 की भी वैल्यू इजीली आ जाएगी. बस स्टूडेंट्स हमें वही देखना है सोल्यूशन में. तो चलो देख लेते हैं. सो व्हाट वी हैव फर्स्ट, यस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाट इज रीजन स्टूडेंट्स, या रीजन इज को इंटीरियर एंगल, है ना. अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यस हम एंगल 3 की वैल्यू पहले इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं. सो एंगल 1 इज अवर 135 डिग्री प्लस एंगल 3 which is equal to 180 degree. So we have angle 3 is equal to 45 degree. स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल 3 जो हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट थी वो आ चुकी है. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स. व्हाट वी हैव, एंगल 2 एंड एंगल 4 बोथ आर इक्वल. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. व्हाट इज द रीजन हियर, दे बोथ आर इक्वल विच इज इक्वल टू 40 डिग्री. व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट्स, यस रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना स्टूडेंट्स. इट मीन्स अब हमारे पास एंगल 4 की भी वैल्यू है जो 40 डिग्री है. सो इजीली वी कैन फाइंड आउट एंगल XMY. सो वी हैव एंगल XMY विच इज इक्वल टू एंगल 3 विच इज अवर 45 डिग्री प्लस एंगल 4 विच इज अवर 40 डिग्री. वही हमारी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स. सो व्हाट वी हैव 85 डिग्री. सो अवर रिक्वायरमेंट इज एंगल XMY विच इज इक्वल टू 85 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट सम देख लेते हैं. यहाँ पे क्या दिया गया है, PQ is parallel to ST. This PQ is parallel to ST given. The next is given angle PQR is 110 degree. Angle PQR is our 110 degree जिसे हम angle 1 indicate कर देते हैं. Then next is given angle RST is 130 degree. Angle RST is given 130 degree जिसे हम angle 2 indicate कर देते हैं. अब हमें find क्या करना है स्टूडेंट्स, angle QRS. Angle QRS is our question जिसे हम angle 3 indicate कर देते हैं. तो हमें find out क्या करना है, angle QRS विच इज इक्वल टू एंगल 3. ये हमें फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अगेन आपने देखा पैरेलल लाइन दिए तो गए हैं, लेकिन पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो किसी ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड नहीं है. देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, PQ एंड ST किसी एक ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया ही है कि ऐसी कंडीशन है तो आपको पैरेलल लाइन एक्सटेंड करना है या तो फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पैरेलल लाइन एक्सटेंड करेंगे तो कोई कंडीशन आएगी हमारे पास. यस, अगर मैं PQ को एक्सटेंड करती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए PQ को मैंने एक्सटेंड कर लिया है एज OF जो SR को पॉइंट O पे मिल रहा है. सेम वे TS को भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स. ओके, जो यहाँ पे हमें पॉइंट E मिलेगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए फिगर को, अब हमारे पास पैरेलल लाइन किसी एक ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड है, SR से कनेक्टेड है, लेकिन साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्राइंगल भी फॉर्म हुआ है. देख रहे हो ना, इट मीन्स हम ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज कर पाएंगे एंड पैरेलल और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट भी यूज कर पाएंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये ट्राइंगल QRO में है ना, एंड एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल. और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड तो हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. इट मीन्स अगर मुझे एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एंगल 1 का अदर अपोजिट एंगल जिसे हम एंगल 4 इंडिकेट कर देते हैं, एंगल 4 की वैल्यू चाहिए. इट मीन्स वी कैन राइट हियर इन सोल्यूशन फर्स्ट दैट 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 जिसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं. यहाँ पे कौन सा कंडीशन अप्लाई किया स्टूडेंट्स, हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे यूज की है. अब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, इट मींस अगर एंगल 4 की वैल्यू आ जाती है तो हम एंगल 3 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. अब एंगल 4 की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट्स, एंगल 4 की वैल्यू भी बहुत इजीली आ जाएगी स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखिए दिस SR एंड QF दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है एंगल 5, सो एंगल 4 एंड एंगल 5 बोथ विल बी इक्वल एज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल.
है ना. सो वी कैन राइट हियर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, जिसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं. रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल. इट मीन्स हमें एंगल 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब एंगल 5 की वैल्यू स्टूडेंट्स कैसे आएगी? एंगल 5 एंड एंगल 2. देखिए स्टूडेंट्स, parallel line also we have and transversal also we have. So angle 2 and angle 5 both are co-interior angle. It means 130 तो है ही, तो angle 5 हम easily find out कर पाएंगे. So we can write here now angle 2 plus angle 5 is equal to 180 degree. Reason क्या होगा? Yes, they both are co-interior angle. So we have angle 2 already we have, which is equal to 130 degree. Angle 5 हमें find out करना है, which is equal to 180 degree. So we have angle 5 is equal to 50 degree. Angle 5 की वैल्यू आ चुकी है, which is equal to angle 4. That is only our angle 4. Because what is the reason? From 2, है ना. अब हमारे पास एंगल 4 की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स. So from 1 easily we can find out angle 3, जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना. So what we will do now, from 1 we can write 110 degree is equal to angle 3 जो हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल 4 जो हमने फाइंड आउट कर लिया है. So plus 50 degree. So after solving it we have angle 3 is equal to 60 degree, है ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है एंगल 3 which is equal to our angle QRS, है ना स्टूडेंट्स. सम्स एक्चुअली बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, लेकिन कहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्शन आएगा वो आपको सोचना है, फिर आप इजीली सम सॉल्व कर पाओगे. स्टूडेंट्स चलिए अपना नेक्स्ट सम देख लेते हैं. क्या दिया गया है यहाँ पे? इन फिगर कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स. हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट मींस एंगल ADC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ना तो हमें यहाँ पे ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, पैरेलल लाइन नहीं दी गई है तो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, और ट्रायंगल भी नहीं दिया गया है तो वो कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स इट मींस इस सम में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस साइड BC से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ. ओके, अब स्टूडेंट्स हम पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे कि जिससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए. इट मींस वो लाइन x से भी, पॉइंट D से भी रिलेट करनी चाहिए. ओके, तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो पॉइंट D से पास हो. यहाँ पे मैंने लाइन EF ड्रॉ की है. ओके स्टूडेंट्स, अब इस लाइन EF के ड्रॉ करने से स्टूडेंट्स क्या हुआ? देखिए यहाँ पे EF इज पैरेलल टू BC और DC एज अ ट्रांसवर्सल, तो हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट यूज कर पाएंगे. और प्लस स्टूडेंट्स और भी कुछ हो रहा है, देखो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, ट्राइंगल AED, तो हम वो भी तो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, है ना. अब स्टूडेंट्स इससे क्या हुआ? ये जो x है, x दो एंगल्स में डिवाइड हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस लाइन, है ना. तो यहाँ पे ये जो एंगल है इसे मैं अगर एंगल 1 इंडिकेट कर देती हूँ, एंगल FDC को, और स्टूडेंट्स एंगल ADF को हम एंगल 2 से इंडिकेट कर देते हैं. ओके, अब आगे कुछ वैल्यूज भी दी गई है स्टूडेंट्स, उसे भी हम नंबर से इंडिकेट कर देते हैं. तो यहाँ पे एंगल EAD को हम एंगल 3 से इंडिकेट कर देते हैं, एंगल EBC को हम एंगल 4 से इंडिकेट कर देते हैं, और एंगल DCB को एंगल 5 से इंडिकेट कर देते हैं, है ना स्टूडेंट्स. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? x की वैल्यू. इट मींस x क्या है स्टूडेंट्स? क्लियरली फिगर में दिख रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है ऑब्वियसली उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे फिगर में दिख ही रहा है स्टूडेंट्स, देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5 दिस टू आर इक्वल. गिवन हमें 5 है ना, तो एंगल 1 की भी तो वैल्यू आ गई. रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स? दोनों इक्वल है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 विच इज इक्वल टू एंगल 5 क्या है स्टूडेंट्स? 50 डिग्री. और इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना. अब स्टूडेंट्स इट मींस एंगल 1 की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें एंगल 2 की वैल्यू चाहिए. एंगल 2 के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, एंगल 2 कहाँ पे फॉर्म हुआ है? ये जो ट्राइंगल AED है उसके एक्सटीरियर पार्ट में. इट मींस एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है, और इसके अगर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स देखें स्टूडेंट्स, हम एक्सटीरियर एंगल है तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये एंगल 2 है तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? एंगल 3, और ये वाला एंगल एंगल AED जिसे हम एंगल 6 से इंडिकेट कर देते हैं, है ना. इट मींस अगर हमें एंगल 2 चाहिए, एंगल 2 की वैल्यू चाहिए, तो हमें एंगल 6 की वैल्यू चाहिए उससे पहले. एंगल 6 की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट्स? फिगर में देखिए ध्यान से, एंगल 6 की वैल्यू भी इजीली मिल जाएगी. एंगल 6 और एंगल 4 दोनों इक्वल ही है ना. क्यों? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एज BC इज पैरेलल टू EF एंड EB इज ट्रांसवर्सल, है ना स्टूडेंट्स. सो दैट वी कैन राइट दैट एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री. रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स,
अब स्टूडेंट्स एंगल 6 की वैल्यू है तो हम एंगल 2 की वैल्यू भी तो फाइंड आउट कर पाएंगे. सो एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6. याद है ना स्टूडेंट्स सबको, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है. दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. स्टूडेंट्स हमने कई बार यूज किया है ये प्रॉपर्टी, है ना, बस उसे यूज करना है. सो व्हाट वी हैव, एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री और एंगल 6 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, एंगल 6 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 80 डिग्री एंगल 2 की वैल्यू. अब एंगल 2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, बस हमें चाहिए था वो दोनों वैल्यू तो आ चुके हैं, एंगल 1 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल 2 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री. दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो व्हाट वी हैव, यस एंगल 1 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री. सो वी हैव x इज इक्वल टू 130 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है स्टूडेंट्स. ओके, अब स्टूडेंट्स ये आपको पता चल गया कि हमने कैसे 130 डिग्री फाइंड आउट किया. ओके स्टूडेंट्स, तो बस ऐसे ही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास ये 130 डिग्री आंसर आ चुका है. ओके, तो स्टूडेंट्स अगर इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया, लेकिन स्टूडेंट्स इससे दूसरी तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास एक्चुअल में फिगर क्या थी, अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना था ये x, है ना, ये हमारी फिगर थी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमारे पास टोटल कितने साइड्स है, 1 2 3 एंड 4. इट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल की 3 एंगल्स दिए गए हैं, तो हम ये 4th एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट डी पे, है ना. 4th एंगल फाइंड आउट करके स्टूडेंट्स ये हमारा इंटीरियर एंगल है, तो हम उसका एक्सटीरियर एंगल मीन्स रिफ्लेक्स एंगल भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, है ना. तो स्टूडेंट्स वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, चारों एंगल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 4 एंगल्स है ना A B C and D, इनका सम देख लेते हैं. तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल में वही होता है ना, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो हम वही कर रहे हैं. सो 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल ADC जो इनर पार्ट है वो स्टूडेंट्स, एंगल ADC दैट इज वो हमें फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री. स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एंगल ADC, ये जो इनर एंगल है ये कितना आएगा, एंगल ADC, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ADC विच इज इक्वल टू 230 डिग्री, है ना. अब हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली x, ये x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ADC है, ये एंगल ADC है, उसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, है ना. तो वही हमें फाइंड आउट करना है और हमें पता है ये रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल ADC. सो 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री विच इज इक्वल टू 130 डिग्री x, है ना स्टूडेंट्स. तो ये सम हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया. तो स्टूडेंट्स आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, इसीलिए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने ये ऐसे सॉल्व किया है. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे क्या दिया गया है, AB इज पैरेलल टू CD. दिस AB इज पैरेलल टू CD. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स. अब ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो कि जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है वो एक्चुअल में यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज AB इज पैरेलल टू गिवन CD, लेकिन ट्रांसवर्सल से तो कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं. इट मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो लाइन CD है उसे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना. देन वी कैन से दैट दिस AB एंड CD आर कनेक्टेड विथ एनी ट्रांसवर्सल. तो चलो हम स्टूडेंट्स DC की डायरेक्शन में लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, जिसे हम पॉइंट F दे देते हैं. ओके, जो A को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रही है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो दिस AB एंड CD आर कनेक्टेड विद अ ट्रांसवर्सल AE, और यहाँ पे एक ट्राइंगल भी फॉर्म हुआ है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल CFE. अब इस ट्राइंगल CFE में जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल x है वो एक्सटीरियर एंगल है ना, वही हमें फाइंड आउट करना है. अब एक्सटीरियर एंगल है स्टूडेंट्स, तो इसके 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल भी हमें चाहिए. तो उसमें से ऑलरेडी एक अपोजिट इंटीरियर एंगल है जिसे हम एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं. दूसरा अपोजिट एंगल हमें चाहिए, इंटीरियर अपोजिट एंगल, जिसे हम एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं. इट मीन्स हमें सोल्यूशन में पहले क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, सो दैट x कैन बी रिटन एज एंगल 1 प्लस एंगल 2. रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, यस ऑफ कोर्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके, इट मीन्स यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू तो है स्टूडेंट्स, सिर्फ हम एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो इजीली एंगल x, हमारे x की वैल्यू आ जाएगी. अब एंगल 2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइन भी है ना और ट्रांसवर्सल भी है, तो उसका कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स. तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम अगर 105 मीन्स एंगल BAF को एंगल 3 कंसिडर करते हैं, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. What is the reason? They both are corresponding angles, है ना students? So we can write here now angle 2 is equal to angle 3. What is the reason?
रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल 3 की वैल्यू तो है स्टूडेंट्स हमारे पास 105 डिग्री, सो हमारे पास एंगल 2 की भी वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव, x इज इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू है 25 डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू आ चुकी है 105 डिग्री। सो वी हैव x इज इक्वल टू 130 डिग्री, जो हमारी रिक्वायर्ड आंसर है।